we can start the Hi, 17th November. because it is already 11:15, so I guess we can proceed. Mm-hmm. So let us start today's session. We were expecting around 40 participants, but probably due to maybe technical glitches, others are not able to maybe join this webinar, since the online sessions are now a new thing for everyone, for each one of us. We all are learning this technology every day. So probably because of that, others are not able to join. Um, but first and foremost, I would like to express my heartfelt wishes for the work Delhi Police is doing during this pandemic. It is really remarkable and commendable the way every one of us, we are staying inside our homes, and the Delhi Police is working day and night to make it possible for us to stay safe and stay healthy inside our houses. The various food distribution programs, various mask distribution, and other social issues apart from maintaining the law and order, which the police officials are doing, is really remarkable in this unprecedented time. Now, the Missing Children Day, the International Missing Children Day, it is observed on 25th of May, 2020 it was. So the purpose of this training session is to sensitize the police personnel regarding the protocols to be followed, right from the registration of the FIR, and how to deal with the complaint, how to follow the procedures when it relates to interstate trafficking. Um, so the purpose is the various committees of the High Court have already laid down that even under the Southern Halder versus GNCT of Delhi, the High Court has directed the DLSA and the CWC to provide training programs for police officials to sensitize them on missing children. It was observed Southern Halder was basically a writ on habeas corpus of child went missing, and there was complete flouting of the protocol, and the complaint was initially not registered. So then the guidelines came in that case that there should be a sensitization program for the police officials in case of missing children. It is not just another FIR under 363. It can have many implications. It can be a trafficking racket or something like that. So for this, we have with us Madam Gitanjali Goyal. Madam is additional sessions judge at Southwest District Dwarka Courts. Many of you must have already done another training program with ma'am, or you might have even appeared before the court of ma'am. Ma'am has been working with the Delhi State Legal Services Authority. Then she's also been on the Juvenile Justice Board when this case of Nirbhaya had come, and she had dealt with the juvenile in that, and the guidelines which followed thereafter. Ma'am has also worked on that, and I can assure you, it is always a delight to hear from ma'am. Ma'am makes things so simple, and it will. I'm confident that this will be a wonderful session for the ones who are present, and for the ones who could not make it, they would they would be missing upon something. So let's hear it from ma'am. Ma'am, are you? Thank you, Manu. Can you hear me? Yes, ma'am. ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे मनु ने अभी कहा कि आप लोग को सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए फॉर दी इमेंस एफर्ट्स ऑल ऑफ यू आर पुटिंग इन। इतनी गर्मी बढ़ गई है, उसके बावजूद भी आप लोग रोड्स पे खड़े होकर अलग अलग जगह जाकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान, तो दैट इज रियली कमेंडेबल।
एंड उसके एडिशन में ये नहीं है कि आपको अपनी रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डिस्चार्ज करनी है, यू आर ऑल्सो बर्डन्ड विद योर रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज एन एडिशनल जॉब यू आर डूइंग। एंड वी हैव इवन हर्ड कि काफी पुलिस ऑफिसर्स घर नहीं जा पाते हैं कितने कितने दिन। वी नो कि कितने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आप लोग काम कर रहे हैं। अगेन जैसे मन्नू ने कहा था कि परसों इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे था। एंड बेसिकली इस डे को इसलिए मनाया जाता है इन रिकग्निशन दैट देयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड हु गो मिसिंग। तभी कोई डेज को मनाया जाता है व्हेन वी फाइंड दैट कि देयर इज अ पर्टिकुलर इशू जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, तो किसी ना किसी डे को उसके लिए डेजिग्नेट कर दिया जाता है। सो आप लोग की अगेन सभी की हो सकता है कि कभी ना कभी मिसिंग चिल्ड्रन पे ट्रेनिंग हो चुकी हो। एंड लास्ट ईयर हमने एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स की, 2 बार ट्रेनिंग हुई थी। अगेन जैसे मनु ने कहा, साधन हल्दर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने मैटर का संज्ञान लिया था एंड इट वाज डायरेक्टेड दैट मिसिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, एसओपीज हैं, उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाना चाहिए एंड ट्रेनिंग्स भी करनी चाहिए। सो सम ऑफ यू मे हैव ऑलरेडी अंडरगॉन ट्रेनिंग्स, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑलवेज बेटर कि हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करते रहें, ताकि जो हमारे को पॉइंट्स कभी मिस हो जाते हैं वो भी रिफ्रेश होते रहें। एज आई ऑलवेज से, लाइक पहले भी जब मैंने कोई इसी पे ट्रेनिंग किया था, तो आई हैड सेड कि इट इज नॉट कि आप लोग डेलिबरेटली गलती करते हैं या वॉट एवर, बट क्योंकि आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं। जैसे मिसिंग चिल्ड्रन पे एक आपका सर्कुलर है, जुवेनाइल से रिलेटेड एक और सर्कुलर है, चिल्ड्रन जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के होंगे उनका मेंटली इल पर्सन के लिए अलग डायरेक्शंस होती हैं। तो हर चीज के लिए इतने इतने अलग अलग आपके ऊपर डायरेक्शंस आते रहते हैं। सो ये स्वाभाविक है, इट इज नेचुरल कि कुछ ना कुछ कभी कमी रह जाती है, गलती रह जाती है। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों को रिवाइज करते रहें, सो दैट कभी कोई स्कोप गलती का ना रहे। एंड स्पेशली बिकॉज दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी सेंसिटिव, एंड जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार कि दिस हैज बीन बिफोर द कोर्ट्स सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में बहुत समय से इस इशू के बारे में बातचीत की जा रही है। एंड अगर कोई भी एक भी केस ऐसा आएगा हाई कोर्ट के सामने जिसमें ये लगता है कि पुलिस ने गाइडलाइंस नहीं फॉलो की हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू से कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। तो इसीलिए बेटर रहता है कि थोड़ा सा हम अपना एक चेकलिस्ट बना के रखें, या जो अगर आप आपका जो अभी हम बात करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर है आपका, वही बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर उसी के हिसाब से हम सब चीज़ों को फॉलो कर ले, तो आई थिंक कोई स्कोप गलती का नहीं रहता। एंड नोबडी कैन एटलीस्ट रेज फिंगर्स। कल को कोर्ट में कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि आपको जो अपनी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की है। सो इसीलिए हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोग को लगता होगा बार बार ट्रेनिंग्स करते रहते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, आई मीन लाइक इंटरनेट का फायदा ये रहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कि रीच आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप लोग को सबको एक जगह इकट्ठा भी नहीं होना पड़ा एंड यू कैन जॉइन इन। बट एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन कम रहता है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम 1 or 2 पुलिस ऑफिसर्स कि जिनके पास कोई मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस आए हों, क्या रीजंस है जिससे बच्चे मिसिंग हुए थे और आपने उसको कैसे हैंडल किया था। सो एनीबडी वांट्स टू रिस्पॉन्ड प्लीज, कोई भी जवाब दे सकता है, कोई भी बता सकता है। कोई बोलना चाहता है? नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, अपना माइक अनम्यूट करके एंड देन आप बता सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो। जी मैम मैडम, कुछ बच्चे जो हेलो गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हाँ हैं? जी। हाँ, मीना जी बोलिए। ऐसा ही, गुड मॉर्निंग मैडम। ऐसा ही वीना शर्मा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारका डिस्ट्रिक्ट से। हाँ मैडम, जी। बहुत सारे मिसिंग हैं जो चिल्ड्रन होम जो हमारे हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, चिल्ड्रन होम है, बहुत सारे बच्चे वहाँ से रिकवर। मैंने पिछले 2 महीने में 4 चिल्ड्रंस रिकवर किए हैं, जो कि हमारे अलग हम्म। अलग चिल्ड्रन में रिकवर हुए हैं। पिछले 2 से ढाई महीने से मैंने 4-5 बच्चे तो उनके 5 बच्चे मैंने क्या रिकवर रीजंस किए थे, हैं। क्या रीजंस थे मिसिंग होने के? मिसिंग होने के जैसे बच्चे छोटी एज के हैं। मिसिंग जैसे एक बच्चा 5 इयर्स का था और वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसके घर के बाहर से एक लोकल बस जा रही थी, जो कि उस बस में बैठ गया और वो जाके सब्जी मंडी जाके रिकवर हुआ। सब्जी मंडी वहाँ
पूरा उसको वॉच किया गया उसके पेरेंट्स को, लेकिन बच्चा नजफगढ़ का था, इसीलिए उसके कुछ वहाँ लिंक नहीं हुए। तो कुछ हमारी भी मिसकम्युनिकेशन गैप रहता है कि हम लोग सर्च नहीं करते हैं कि जिस दिन बच्चा मिस हुआ उस दिन रिकवर कहीं से बच्चा हुआ है या नहीं हुआ है। वो हमारा मिसकम्युनिकेशन गैप रहा है, क्योंकि सेम ओके। डे बच्चा रिकवर हो रहा है, सेम डे बच्चा मिस हो रहा है, तो थोड़ा सा ये हमें देखना पड़ेगा। हमारी कुछ मिस्टेक्स रही हैं, लेकिन मैंने पिछले 2 ढाई महीने में छोटे बच्चे 5 बच्चे मैंने रिकवर किए हैं। एक बच्चा पंजाब से भाग रिकवर के करके को आया रिहेबिलिटेट कर दिया। जी 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 जी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और कोई थैंक यू। बोलना चाहे? कोई और बोलने की कोशिश कर रहा था? हेलो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। जी मैम, कुछ मेरे पास दो लड़की मिसिंग हुई थी और जो दोनों रिकवर कर लिए मैंने। तो ओके। उनके मम्मी पापा उन पे डांट मारते थे, उनके साथ मार पिटाई कर देते थे। तो ओके। इस बात को लेके वो अपने घर से चली गई अपने फ्रेंड के पास। फिर वो ओके। दोबारा आ गया। अब उनके मम्मी पापा से मैंने बात करी कि आप अपने बच्चे को हम्म। प्यार से हैंडल किया करो, इस तरीके से डांट मत मारा करो जो बच्चा घर छोड़ के ओके, ठीक है। सो वही है कि देखिए, मोस्टली कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं होगा जिसने कभी ना कभी कोई ऐसे बच्चे के केस ना हैंडल किए हो। एंड काफी केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें बच्चे मिसिंग थे, रिकवर हुए हैं, तो कभी ना कभी आप लोग ने सभी ने केसेस हैंडल किए होंगे। अभी कुछ कारण हमारे पास आया कि छोटा बच्चा गलती से बस में बैठ के चला गया, दूसरा कारण आया कि पेरेंट्स डांटते थे तो इसलिए वो लड़कियां भाग गई। अभी उन कारणों को भी हम देखेंगे कि मुख्य तौर पर कौन से कारण ऐसे होते हैं जिससे बच्चे मिसिंग जाते हैं। मुझे बस आधे मिनट का टाइम दीजिए, मैं वो पावर पॉइंट अपना साथ में शेयर करूंगी आप लोग से। मनु, पावर पॉइंट दिख रही है? Yes, ma'am, it is visible. ठीक है मैम, दिख रही है। ओके, फाइन। ओके, तो जब भी हम मिसिंग चिल्ड्रन की बात करते हैं, थोड़ा सा हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएं। तो एज पर गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हर 8 मिनट में कोई ना कोई बच्चा मिसिंग हो रहा है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि समस्या बहुत गंभीर है। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि समस्या काफी गंभीर है। ये मैंने 2018 की जो क्राइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट है उससे फिगर्स उठाए हैं। तो 2018 में टोटल 63,356 चिल्ड्रन वर रिपोर्टेड मिसिंग। और इसमें अगर हम ऐड करें जो प्रीवियस ईयर से बच्चे अनरिकवर्ड चल रहे थे, तो 35,000 से ज्यादा वो बच्चे थे। एंड टोटल नंबर हम देखें तो लगभग 1 लाख के पहुंच जाता है कि जो बच्चे 2018 में मिसिंग थे। फॉर्चुनेटली फॉर अस उसमें से ऑलमोस्ट 58,000 बच्चे रिकवर हो गए, एंड इट वाज ओनली 41,000 हु वर अनट्रेस्ड। आई हैव यूज्ड द वर्ड ओनली। ओनली इस कॉन्टेक्स्ट में कि 1 लाख के करीब बच्चे जो मिसिंग थे उसमें से 60,000 के करीब रिकवर हो गए। बट अगर अदरवाइज हम देखें तो 41,000 का एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर 41,000 बच्चे एक साल के एंड में अनट्रेस्ड हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। एंड हमें यहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा कि जिन माता पिता के बच्चे इस तरह से खो जाते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है। एंड हियर वी ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड, और आप लोग के सभी के अपने घरों में भी बच्चे होंगे, कि बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। तो कोई भी उनको बहला फुसला के ले जा सकता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। इसीलिए जो बच्चों को हम जब मिसिंग चिल्ड्रन की बात करते हैं, इसीलिए अलग से कैटेगरी में बात करते हैं और इस विषय के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो रिपोर्टेड क्राइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से मिसिंग चिल्ड्रन के नंबर आया था, वो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स कम था, 5896 आया है। जबकि 2016 में देखें तो 14,661 का फिगर था। एंड 2016 में दिल्ली का रैंक नंबर 2 पे आता था इन द एंटायर कंट्री अबाउट मिसिंग चिल्ड्रन, और जो नंबर अब रैंक दिल्ली का 4th पे पहुंच गया है।
इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली के लिए अच्छा है। इट मीन्स कि दिल्ली में कम बच्चे मिस हो रहे हैं, बट समहाउ मुझे नहीं लगता कि ये रियलिटी है। वी कांट रियली से कि नंबर ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन कम हो रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी आ रही है। एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो से कि अगर दिल्ली का रैंक 4th है तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की विषय इसलिए नहीं है क्योंकि इन अ वे पुलिस इज डूइंग अ बेटर जॉब। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और रजिस्टर हो रहे हैं। बाकी स्टेट्स जिसमें फिगर्स कम रहती हैं वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बच्चे मिसिंग नहीं हो रहे हैं, बट प्रॉबली वहाँ पर रिपोर्टिंग या रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इतनी ज़्यादा नहीं है जितना दिल्ली में है। सो दैट वे अगर दिल्ली का 4th रैंक है तो ऑब्वियसली वरीसम हमारे लिए इसलिए है कि बच्चे इतने मिसिंग हो रहे हैं, बट इट कुड ऑल्सो भी कि यहाँ पर रिपोर्टिंग ज़्यादा है और रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ट्रैफिकिंग के केसेस भी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। जैसे 2015 में 6877 केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट हुए थे एंड 3500 के करीब चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस रिपोर्ट हुए थे 2015 में। तो जब हम मिसिंग चिल्ड्रन की बात करते हैं उसमें से एक लार्ज परसेंटेज ऑफ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ट्रैफिक हो रहे हैं, बट दे कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो। अगर हम डेफिनेशन ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन पे जाएं तो ये डेफिनेशन हमारे को काफ़ी जगह मिल सकेगी, बट अगर हम ब्रॉडली, क्योंकि ज़्यादातर जब बच्चों के विषय में बात करते हैं तो हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि 2015 में एक नया कानून लाया गया था और उसमें 2 कैटेगरीज हैं बच्चों की। एक बच्चे जो ऑफेंस करते हैं और एक कैटेगरी उन बच्चों की है जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन माना जाता है। एंड उसी में मिसिंग या ट्रैफिक बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है। तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें जेजे एक्ट के तहत, तो उसमें एक मिसिंग चाइल्ड या रनअवे चाइल्ड या जो बच्चा वल्नरेबल है और जो ट्रैफिक किया जा सकता है उसको भी इंक्लूड किया गया है। यहीं से हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन पे आते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी ये इशू काफी समय से चल रहा है और मेजर केस इस पे है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का केस है। एंड उसमें ये कहा गया था कि 18 साल की उम्र तक का कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसके वेयरअबाउट्स उसके पेरेंट्स को या गार्डियंस को नहीं मालूम है तो उसको मिसिंग चाइल्ड माना जाएगा। तो अगर आप इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करें, इट इज़ वेरी सिंपल। हमें कुछ और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा ट्रैफिक्ड है, बच्चा चाइल्ड लेबर के लिए यूज़ हो रहा है, बच्चा प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है। सिंपली अगर उसके गार्डियंस को या पेरेंट्स को जिनको बच्चों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, अगर उनको मालूम नहीं है कि बच्चा कहाँ है और बच्चा 18 साल तक की उम्र का है तो उसको मिसिंग चाइल्ड माना जाएगा। यही डेफिनेशन जुवेनाइल जस्टिस के जो मॉडल रूल्स हैं 2016 के जो फिलहाल दिल्ली में लागू हैं, उसमें भी यही डेफिनेशन को अपनाया गया है। आपकी अपना एसओपी है दिल्ली पुलिस का, उसमें भी मोर और लेस यही कहा गया है कि चाइल्ड हु इज ट्रेस्ड बाय द पुलिस ऑन बेसिस ऑफ अ मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट और इज फाउंड ऑन स्ट्रीट्स और व्हाटएवर विल बी कंसिडर्ड अ फाउंड चाइल्ड। तो एक तरफ हम बात करते हैं मिसिंग चाइल्ड जिसके बारे में कोई नहीं जान रहा, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो बच्चा अगर कहते हैं उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो उसको हम एक फाउंड चाइल्ड मानते हैं। थोड़ा सा हमें ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन भी देखनी चाहिए, बिकॉज जैसे अभी हम बात कर रहे थे बहुत से बच्चे इसमें से ट्रैफिक भी किए जा सकते हैं। सो इसमें मेजर डेफिनेशन जो ट्रैफिकिंग की मिलती है वो एक यूएन का प्रोटोकॉल है टू प्रिवेंट सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्संस स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। एंड इसका आर्टिकल 3 देखें तो इट इज रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, harboring, receipt of persons by means of kin means a threat, use of force, other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power, possession of vulnerability, or giving or receiving of payments to achieve the consent of a person. अब आप एक बच्चा है तो उसके केस में किसके मायने होता है, किसके कंसेंट का मायने है? बच्चे के कंसेंट का तो मायना नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके या पेरेंट्स या गार्डियंस हैं जिनकी कंसेंट मटीरियल होती है। अब व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इट इज नॉट नेसेसरी कि बच्चे को जबरदस्ती उठा के ले जाया गया है या किडनैप किया गया है। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पर फ्रॉडुलेंटली पेरेंट्स को कुछ और झांसा देकर ले जाया गया हो, या कभी कभी ज्यादातर जो हमारे सामने केसेस आते हैं
वो इस प्रकार के आते हैं कि पेरेंट्स से कहा जाता है कि हम आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगे या आपके बच्चे को हम अच्छा काम दिलवाएंगे, और यहाँ पर लाकर बच्चों को एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशंस में डाल दिया जाता है। तो ऐसे केसेस को भी ट्रैफिकिंग ही माना जाता है। नॉट सिंपलिसिटर कि किसी को फोर्सिबली ले जाया गया है, बट जहाँ पर झांसा देकर या फ्रॉडुलेंटली या पैसे देकर भी बच्चे को ले जाया जाता है, उसको भी ट्रैफिकिंग माना जाएगा। ट्रैफिकिंग की अगर हम मोटा मोटी बात करें तो वर्ल्ड में इसको थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाता है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो ड्रग्स और आर्म्स ट्रेड को मानते हैं, बट ट्रैफिकिंग इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज की बात करें, नॉर्मली जब हम फेस टू फेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं तो आई लाइक आस्किंग पुलिस ऑफिसर्स के आपका ऑर्गेनाइज से क्या मतलब है, बट चूंकि वो थोड़ा सा संभव नहीं होता है, समय भी हमारे पास कम है, तो ऑर्गेनाइज की हम बात करें, बेसिकली इट्स अ गैंग ऑपरेटिंग, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो गैंग्स वो ट्रैफिकिंग कर रही हैं। तो इट इज नॉट कि कोई स्ट्रे केस है जहां पर बच्चे को उठा के कोई एक व्यक्ति ले गया किसी पर्पज से, बट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर माने तो पूरे वर्ल्ड में इसको थर्ड लार्जेस्ट क्राइम माना जाता है। 80% ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, और बाकी लेबर के लिए या ऑर्गन ट्रेड के लिए भी हो सकता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांजिट स्टेट है। नॉट जस्ट इंडिया, बट अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली की भी यही स्थिति आती है। सोर्स से मतलब ये है कि यहाँ से बच्चों को दूसरी जगह ले जाया जाता है, इट कुड भी दूसरी स्टेट्स में ले जाया जाता है, या दिल्ली या कंट्री से बाहर भी ले जाया जाता है। इनफैक्ट दिल्ली एक मेजर हब है जहाँ पे हम ट्रांजिट की बात करते हैं। एक मेजर हब है जहाँ पर बच्चों को बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया से लाया जाता है और यहाँ से बच्चों को विदेश भेजा जाता है। डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि बाकी जगह से बच्चों को लाया जाता है यहाँ पर काम करने के लिए या प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में डालने के लिए। तो आप लोगों ने सभी ने केसेस डील किए होंगे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, बिहार से बच्चों को, उड़ीसा से बच्चों को लाया जाता है और यहाँ पर या तो लेबर, चाइल्ड लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। वी ऑल नो women and children are particularly vulnerable to trafficking, प्लस जहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वहाँ पर बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। अब ये जो हमारे कंट्री में, नॉट अगेन नॉट जस्ट द कंट्री बट अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें, एक ऐसी स्थिति आजकल चल रही है कोरोना पेंडेमिक के कारण, जिसमें हम नॉर्मल कोर्स में हम ये समझेंगे कि नहीं, इससे शायद बच्चों पर असर नहीं पड़ रहा हो, बट अगर आप बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स देखेंगे तो इसमें बच्चे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट कि आप लोग ने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी कि बच्चे चल के अकेले घर पहुंचे हैं या पेरेंट्स के साथ पैदल चल रहे हैं सड़कों पे, वो भी एक स्थिति है, बट अ बिगर इशू इज कि बहुत से बच्चे अक्सर हम देखते हैं ढाबे पे बच्चे काम करते हैं, विच इज नॉट अलाउड अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट, बट स्टिल हम को ऐसे पाते हैं, या और किसी काम में उनको लगाया गया था, अब क्योंकि वो काम बंद हो गए थे लॉकडाउन, क्योंकि ना वो अपने घर जा सकते हैं, ना ही उनके एम्प्लॉयर्स उनको रखने को तैयार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हो सकता है कि बच्चे गलत हाथों में पड़ जाएं, एक्सप्लॉइट हों, या आपको लावारिस मिले और फिर हमारे को उनको मिसिंग या फाउंड चाइल्ड ट्रीट करके उनके लिए आगे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। रीजंस के बारे में आप सब जानते ही हैं, क्यों ट्रैफिकिंग होती है। बेसिकली फोर्स्ड लेबर है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जैसे अभी हमने बात किया, सेक्सुअल से बहुत लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, एंड मोर पर्टिकुलरली कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन। हम लोग जानते हैं बहुत से बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों की वीडियोस वगैरह बनाई जाती है, फिर अडॉप्शन रैकेट चलता है। ऐसे काफी केसेस आए हैं जहां पर बच्चों को अडॉप्शन के नाम में ले जाया जाता है, बट अल्टीमेटली उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है या फोर्स लेबर में डाल दिया जाता है। इवन मैरिज के नाम पर, स्पेशली देयर आर सर्टेन स्टेट्स जैसे हरियाणा वगैरह की बात करते हैं, जहाँ पर लड़कियों का नंबर लड़कों से बहुत कम है, तो ऐसी केसेस में बिहार, उड़ीसा वगैरह से बच्चों को, लड़कियों को खरीद के लाया जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े लोगों से उनकी शादी करा दी जाती है। ऑर्गन ट्रेड इज अ वेरी बिग इशू। कहते हैं मेडिकल टेस्टिंग के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। आजकल पता चला है कि बच्चों की स्किन बच्चों की क्योंकि सॉफ्ट होती है, इवन जैसे कुछ किसी को बर्न इंजरीज हो जाए तो बच्चे की स्किन को निकाल कर उस व्यक्ति को ग्राफ्ट किया जाता है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में आपने सुना होगा बहुत सारे नेक्सलाइट्स वगैरह, उन मूवमेंट्स में भी बच्चों को यूज किया जाता है। फिर बेगिंग वगैरह तो हम लोग हमेशा ही देखते हैं, पिक पॉकेटिंग,
बच्चों को पहले एडिक्ट किया जाता है, ड्रग्स दिए जाते हैं, फिर ड्रग्स वगैरह बेचने में इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके लिए बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है या बच्चों को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। ट्रैफिकिंग के अलावा भी जैसे आप में से 2 लोग ने अभी बताया और रीजंस भी हो सकते हैं कि बच्चे घर से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा-सा ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा हमारे को रनअवे चाइल्ड मिलता है, तो उसको हम थोड़ा प्यार प्रेम से उससे डील करें। हम ये मत समझें कि वो बच्चा गलत है। बचपन में हम सभी में पेरेंट्स डाँटते हैं, पढ़ाई के लिए कहते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हर कोई बच्चा भाग जाता है। हाउएवर कुछ बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या थोड़ा उनका नज़रिया या रिएक्शन डिफरेंट होता है बाकी बच्चों से, तो प्रोबेबली वो बच्चे घर से भाग जाते हैं। पेरेंट्स के डर से, पढ़ाई के डर से, डाँटने से या फिर वो सुनने ले जाते हैं। तो उन बच्चों को हमें थोड़ा-सा सेंसिटिवली डील करना चाहिए एंड मोर सो आल्सो क्योंकि अगर बच्चा एक बार भागा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो बच्चा दोबारा भी भाग सकता है। तो उन केसेज़ में हमें थोड़ा फ़ॉलो अप करना भी ज़रूरी रहता है। बहुत से ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को अबैंडन कर देते हैं, स्पेशली अनवेड मदर्स के केसेज़ तो हम लोग जानते ही हैं या कभी-कभी डिसेबल्ड बच्चों में कोई डिसेबिलिटी है तो उनको बहुत अबैंडन कर दिया इनफैक्ट अगर जेजे एक्ट को ही हम देखेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देखेंगे, तो उसमें एक प्रावधान है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सरेंडर भी कर सकते हैं। एंड आप लोगों को शायद सुनकर हैरानी होगी, बहुत से केसेस ऐसे सीडब्ल्यूसीज़ के सामने आते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते और हम बच्चे को सरेंडर करना चाहते हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे ऐसी स्थितियों में आ जाते हैं। फिर थेफ्ट ऑफ चिल्ड्रन अगेन आप लोगों ने कभी हो सकता है सुना हो केसेस का या दिल्ली में भी ऐसे केसेस हुए हैं, स्पेशली जहाँ पर किसी कपल के बच्चा नहीं हो रहा, तब हॉस्पिटल से बच्चे को चुरा लिया जाता है। रिलीजियस पर्पसेस के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए बच्चों को चुराया जा सकता है। ज़्यादातर लड़कों को चुराया जाता है कि किसी के घर में लड़का नहीं हो रहा है, तो बच्चों को चुराया जा सकता है। नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण भी बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, मीनिंग पेरेंट्स वगैरह की डेथ हो गई, बच्चे नहीं बता पाते वहाँ पे कि उनके फैमिली मेंबर्स कौन थे, क्या था, तब भी वो मिसिंग चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाते हैं। होम्स वगैरह से बच्चे भाग जाते हैं और एक जनरली सोशल परसेप्शन रहती है कि मिसिंग चिल्ड्रन जो है वो ज़रूरी नहीं है ट्रैफिक हुए हों, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बहुत तादाद ऐसी रहती है कि जहाँ बच्चे ट्रैफिक किए जा रहे हैं या उनके एक्सप्लॉइटेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। ये कुछ पुलिस आपके दिल्ली पुलिस के ही स्टैटिस्टिक्स हैं, थोड़े पुराने हैं, व्हिच शो फिगर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2012, 13, 14 में अगर हम देखें 16 में हम देखें, ठीक है? ये एक बार डीएलएसए ने एक रिपोर्ट की थी, उसमें रीज़न्स कुछ सामने आए थे, पेरेंट्स ने स्कोल्ड कर दिया, एकेडमिक प्रेशर, अनसाउंड माइंड, अपनी मर्ज़ी से इलोपमेंट के आपके सामने बहुत केसेज़ आते होंगे, स्पेशली लाइक 15 टू 18 एज ग्रुप में बहुत सारे इलोपमेंट के केसेज़ आपके पास आते होंगे। अनफॉर्च्यूनेटली वी हैव टू रजिस्टर देम ओनली एज़ 363 और लाइक जहाँ पर दे हैव हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप तो उसमें पॉक्सो का या रेप के प्रोविजंस ऐड हो जाते हैं। Whereas it may also be a circumstance कि वो बच्चे अपनी मर्जी से गए थे and we don't have any separate section dealing with elopement. तो बहुत सारे कारण होते हैं जिससे बच्चे मिसिंग हो सकते हैं। वी ऑल नो एंड अभी हमने बात भी की थी कि बच्चों को थोड़ा सा हमें डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि वीक होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, अपने लिए रिस्पॉन्सिबली डिसीजन नहीं ले पाते हैं एंड यही कारण होता है कि एडल्ट्स को या दूसरे लोगों को बच्चों को एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें, बच्चों के बारे में इवन कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले भी सोच चल रही थी। इंटरनेशनली भी बहुत सारे कन्वेंशंस आए थे लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, फिर यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस आए। आप लोग सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है 1989 का, जिसको इंडिया ने साइन किया हुआ है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए गए एंड पर्टिकुलरली आर्टिकल 15(3) है जो स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस हैं जो फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करते हैं, बेगार को प्रोहिबिट करते हैं। तो ऐसे काफी सारे प्रोविजंस हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों से डील करते हैं एंड इवन बच्चों की एजुकेशन को वी नो के मैंडेटरी कंपलसरी बनाया गया है। काफी सारे कन्वेंशंस भी आए हैं, कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है। प्लस हम जानते हैं कि पहले सीता नाम से सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट होता था, जिसको बाद में चेंज करके
अब इटवा कहते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है। तो इसमें ही मेजरली सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए ट्रैफिकिंग हो रही है, वो मेजरली इसमें कवर किया गया है। आप लोग ने सभी ने इन सेक्शंस को देखा होगा। तो इसमें अगर बच्चे को इस प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या व्हाट एग्जैक्टली इज कहते हैं ऑफेंस, प्रोक्योरिंग, इंड्यूसिंग, टेकिंग पर्सन। तो जो अभी हमने ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन देखी थी, समवेयर वही सब चीजें कवर होती हैं कि बच्चे को लाया जा रहा है, या कभी कभी बहला फुसला के लेके जाया जा रहा है, या बच्चे को किसी तरह से ले जाया जाता है जिस पर्पस अल्टीमेटली प्रोस्टिट्यूशन है। तो उन सब केसेस में उसको एक पनिशमेंट माना गया है। एंड जैसे हम जानते हैं कि अगर बच्चे का ट्रैफिकिंग होता है तो उसमें पनिशमेंट ज्यादा होती है। इसी तरह से अगर हम आईपीसी में देखें तो आईपीसी में भी बहुत सारे सेक्शंस है जो ट्रैफिकिंग वगैरह से डील करते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट मोर और लेस सेम जो अभी हमने ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन देखी थी, उन्हीं चीजों को रिप्रोड्यूस किया गया है। जैसे सेक्शन 370 आईपीसी 370 ए है, यहाँ पर अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए ट्रैफिकिंग है तो उसको ज्यादा सिवियर पनिशमेंट है, ठीक है। फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ ट्रैफिक पर्सन, अलग अलग क्लॉजेस है इसमें। फिर इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे सेक्शन 363 में हम जानते हैं कि अभी तक अमेंडमेंट नहीं की गई है 361 363 में। तो उसमें बेसिकली अगर लड़का 16 ईयर्स तक का है, लड़की 18 ईयर्स तक की है, तो उसको किडनैपिंग माना जाता है। बट यहाँ पर हमें सेक्शन 84 जेजे एक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि लड़का या लड़की कोई भी 18 साल तक के हो, अगर उनको वो गायब होते हैं तो उनको कहते हैं 363 के तहत एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, उनको मिसिंग या किडनैप चाइल्ड माना जाएगा। तो अब जो लड़के या लड़की में एज डिस्टिंक्शन था उसको भी डन अवे विद कर दिया गया है। इनफैक्ट आके भी जो पुराने सर्कुलर्स वगैरह थे, स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे, उसमें भी एज डिस्टिंक्शन की जाती थी, 12 साल या 16 साल का कहा जाता था। बट अब जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, एंड वो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के डिसीजन से भी हुआ है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि 18 साल तक अगर बच्चा मिसिंग है तो उसके आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है। इसी तरह से सेक्शन 363 ए है, अगर बेगिंग के लिए यूज किया जाता है, माइनर गर्ल को प्रोक्योर किया जाता है तो 366 ए वगैरह है। साथ में हम चाइल्ड लेबर एक्ट की भी बात कर सकते हैं, उसमें भी बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन या बच्चों को लेबर में इस्तेमाल करना उसको रेगुलेट किया गया है, उसका वायलेशन होता है तब भी हम उसको ट्रैफिकिंग मान सकते हैं। बॉन्डेड लेबर एक्ट है, फिर सेक्शन 81 को हम जेजे एक्ट को देखें तो अगेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ चाइल्ड को पनिशेबल बनाया गया है। यहाँ पे आपका पॉक्सो भी लगेगा अगर बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। The reason for telling you all these provisions is generally पुलिस ऑफिसर्स हम लोग से ज़्यादा बेहतर जानते हैं प्रोविजंस को, बट कभी कभी क्या होता है कि हम केवल एक प्रोविजन के ऊपर ध्यान देते हैं, जबकि सेम केस में जैसे हमारे को एक बच्चा मिलता है, पता चला है कि उसको चाइल्ड लेबर से हम रेस्क्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग ने सुना होगा और आप लोग बेहतर भी जानते होंगे, दिल्ली में ही बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बच्चों को चाइल्ड लेबर में इस्तेमाल किया जाता है। एंड जब वहाँ पे कभी रेड की जाती है तो ये मिलता है कि बहुत छोटे बच्चे, 8 9 साल के, 10 साल के बच्चे, उनको काम में लगाया जाता है, स्पेशली जैसे मैचेस वगैरह बनाना, सिगरेट वो बीड़ी रोल करने के लिए, जरी वर्क में बच्चों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कहते हैं बच्चों के हाथ सॉफ्ट होते हैं तो वो बेहतर उस काम को कर सकते हैं। और बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस में एक कमरे में 8 10 बच्चों को रखा जाता है, लाइट नहीं होती है प्रॉपर, 12 12 घंटे उनसे काम कराया जाता है। तो वो सारे, जब ऐसे कोई भी सिचुएशन आती है तो इट बिकम्स नेसेसरी कि हम केवल एक ही प्रोविजन को ना देखें, ये भी सोचे कि कोई और एक्ट के तहत भी वो कवर हो। अब हम थोड़ा सा जल्दी से कोड डायरेक्शंस की बात कर लेंगे क्योंकि उसी के बारे में हमारे कोड डायरेक्शंस एंड जो आपका एसओपी या स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें क्या कहा गया है आप लोग के लिए। तो जैसे मनु ने भी कहा था, मेनली सदन हल्दर का मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में चल रहा है, जिसमें रिपीटेडली काफी डायरेक्शंस आए हैं। इसके अलावा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफी सारे डायरेक्शंस हैं। पुलिस का स्टैंडिंग ऑर्डर है 252 रिवाइज्ड वाला जो है, तो उसमें बहुत डिटेल में स्टेप्स दिए गए हैं, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक एसओपी बनाया है, उसको रिसेंटली शायद कुछ मॉडिफाई भी किया गया है। फिर अगर हम जुवेनाइल जस्टिस रूल्स की बात करें तो उसमें रूल 92 है, उसमें भी अगर मिसिंग चाइल्ड होता है तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे मैं कह रही थी आपसे, अगर हम कोर्ट मैटर्स की बात करें तो आप ये देखिए, सबसे पहले 1996 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया था, होरीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसमें
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एज फार बैक एज 2002 में ये कहा था कि अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो उनको ट्रेस करने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए और एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगेन जैसे मन्नू ने कहा कि जब ये सदन हल्दर वाला मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास आया, इट वाज नॉट रियली अ केस ऑफ अ मिसिंग चाइल्ड, इट वाज ओनली अ पिटिशन, हेबियस कॉर्पस पिटिशन था। एंड जब हेबियस कॉर्पस पिटिशन था और जब क्या कहते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि बहुत समय तक उसमें एफआईआर ही रजिस्टर नहीं की गई थी, जबकि जनरली दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, एफआईआर रजिस्टर हो रही हैं, बट समहाउ उस केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं, तो इसीलिए फिर कोर्ट ने उसको मॉनिटर करने का केस को मॉनिटर करना शुरू किया, प्लस डायरेक्शंस बार-बार दी। एंड आप ये देखिए जबकि 2002 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। ललिता कुमारी का तो बहुत फेमस केस है, आप सभी जानते हैं। 156(3) में एफआईआर रजिस्ट्रेशन की इसमें बातचीत की के लिए डिटेल गाइडलाइंस दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक मैटर 2009 में आया था, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, जिसमें अगेन टाइम टू टाइम बहुत सारे डायरेक्शंस दिए गए थे। तब एज को 16 इयर्स तक माना गया था एंड उसके बाद फिर अब उसको 18 साल माना जाता है। उसमें अपलोड वगैरह करने के भी डायरेक्शंस दिए गए थे ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल पे। इसके बाद जो बचपन बचाओ आंदोलन का केस मैंने पहले आपसे जिक्र किया, ये एक मेजर केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक जो दिल्ली में डायरेक्शंस हुए थे उन्हीं को पूरी कंट्री के लिए रेप्लिकेट किया, प्लस कुछ और एडिशनल डायरेक्शंस भी इसमें दी। अब यहाँ पर अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रेट किया कि सभी केसेस में मिसिंग चिल्ड्रन में ये माना जाना चाहिए कि दे कुड बी विक्टिम्स ऑफ किडनैपिंग एंड ट्रैफिकिंग एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होना चाहिए। ठीक है, और ये भी कहा था कि जो तब तक अनट्रेस बच्चे थे उन सभी केसेस में एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। मोर ओवर ये भी कहा था कि हर थाने में स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि जेजे एक्ट के तहत जिनको पहले हम जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर्स कहते थे, अब चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं। तो दिल्ली में हर थाने में वो अपॉइंट किए गए हैं, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो इन केसेस को हैंडल कर सके। अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि हर थाने में पैरालीगल वॉलंटियर्स लीगल सर्विसेज के द्वारा अपॉइंट होने चाहिए जो पुलिस के इन केसेस में मदद कर सके, इवन पार्टीज की मदद कर सके। लास्ट ईयर हमने इस इशू को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की, बट फॉर सम रीजन वो हो नहीं सका। 92 जेजे रूल्स का मैंने आपसे जिक्र किया था, उसमें भी प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि अगर बच्चा कोई मिसिंग होता है तो इमीडिएटली पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी है। जो आपके थाने में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करना है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट आपके डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसको एफआईआर फॉरवर्ड करनी चाहिए एंड उसके बाद पब्लिसिटी वगैरह के लिए सारे स्टेप्स लेने चाहिए। थोड़ा सा हम बात करें रोल ऑफ सीडब्ल्यूसी का। अभी आप में से दो लोग ने बताया था कि आप लोग को बच्चे रिकवर किए गए, तो इसमें अगर हम जनरली बात करें, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बच्चों की केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड की गई है। तो ऐसे जब भी कोई बच्चा हमारे को मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करें ताकि बच्चे के रिहेबिलिटेशन के लिए जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए उनको सीडब्ल्यूसी मॉनिटर कर सके एंड बाद में जिन केसेस में फॉलो अप करने की ज़रूरत है तो उनको फॉलो अप भी कर सके। तो बेसिकली सीडब्ल्यूसी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर आप लोग को एक एडिशनल चीज़ बता दूँ, आप में से ज़्यादातर लोग शायद जानते ही होंगे, दिल्ली में बाय वर्च्यू ऑफ अ हाई कोर्ट जजमेंट, अगेन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से जजमेंट आई थी, उसके तहत अगर चाइल्ड लेबर से कोई बच्चा रेस्क्यू होता है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ये पावर है कि बच्चे के बैक वेजेस रिकवर करा के बच्चे को दिलवा दे। बाकी कंट्री में ये पावर नहीं है चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को, क्योंकि इसको स्टैट्यूट में इंक्लूड नहीं किया गया है, बट दिल्ली में बाय वर्च्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट सीडब्ल्यूसी के पास पावर है कि वो बच्चों को बैक वेजेस रिकवर करा के दिलवा सकती है, विच इज इन एडिशन टू जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 और वो अलग अलग फंड्स क्रिएट किए हुए हैं, उसके इन एडिशन में उनको बैक वेजेस भी मिल सकते हैं। दिल्ली में हम जानते हैं जनरली क्या कहते हैं एफआईआर रजिस्टर होती है, मैटर को अपलोड किया जाता है एंड डीएमपी वगैरह मिसिंग पर्सन स्क्वाड में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके बारे में भी हम आएंगे। दो इनिशिएटिव्स हैं, शायद अब ये नहीं हो रहे हैं, बट इनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि दिल्ली पुलिस हमेशा बहुत पहल लेती है, पहल करती है चीज़ों में एंड बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स भी आते हैं आप लोग की तरफ से समय पर। तो 2011 में एक पहचान नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था
जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने अपने एरियाज में भी उसको किसी तरह से कर सकें तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। जनरली क्या होता है कि आजकल तो बहुत मुश्किल नहीं है कि सभी के पास अपने बच्चों वगैरह की फोटोग्राफ्स मोबाइल्स पे अवेलेबल रहती हैं, बट पहले ये ज़्यादा समस्या आती थी कि बच्चा मिसिंग हो जाता था तो उसकी फोटोग्राफ नहीं होती थी। तो ऐसे केसेस में पुअर फैमिलीज जो कहते फोटोज वगैरह नहीं ले सकती थी, तो उनके बच्चों की फोटोज लेकर एक लाइब्रेरी काइंड ऑफ मेंटेन की गई थी जो इस्तेमाल किया जा सके कि अगर बच्चा मिसिंग हो जाए। एंड यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो उन फोटोज को रेगुलरली अपडेट करते रहे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी जैसे बड़े होते हैं तो उनके फीचर्स में चेंजेस आते हैं और 2-3 साल में उनको पहचानना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो इसलिए हम उसको अपडेट करते रहे। बट अगर हो सके तो आप एक अपना यहाँ पे स्पेशली आई वुड से कि जिन थानों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्या है, ऐसे केसेस ज़्यादा है कि जहाँ पर बच्चे मिसिंग होते हैं, तो वहाँ पर एक ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप एक बच्चों की एक फोटोग्राफ्स की लाइब्रेरी काइंड ऑफ मेंटेन कर सकते हैं। एक और इनिशिएटिव था मिलाप नाम से, जिसमें जो बच्चे मिसिंग थे उनकी फैमिलीज को ट्रेस करके उनको फैमिली से मिलवाने की कोशिश की गई थी। एंड अगेन आई वुड से कि जब ये स्पेशल ऑपरेशंस या कहते हैं इस तरह से ड्राइव्स लॉन्च की जाती हैं तो बड़ी सक्सेसफुल रहती हैं, एंड स्पेशली जिन एरियाज में ज़्यादा ऐसे केसेस हैं तो वहाँ पर ये करते रहना चाहिए। एंड स्पेशली अब जैसे ये कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, इस दौरान अगर आपको बच्चे कुछ मिलते हैं जो मिसिंग वगैरह है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए तो हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें कि बच्चों को उनकी फैमिली से मिलवा सकें। एनजीओज वगैरह के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के सीडब्ल्यूसीज वगैरह के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ताकि इसमें हम अच्छे से काम कर सकें। अगेन आप लोग सभी अपने अपने एरियाज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली कौन से एरियाज हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मोस्ट लाइकली इट कुड बी जहाँ पर फैमिलीज काफ़ी पुअर हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि बच्चों को क्या कहते हैं पेरेंट्स किसी को दे दे फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड लेबर और वट एवर, या कभी कभी पेरेंट्स भी नहीं समझते। इसमें डीएलएसए की भी बहुत अहम भूमिका रहती है कि ऐसे एरियाज में पेरेंट्स को लीगल अवेयरनेस वगैरह क्रिएट कराएं कि किसी की बातों में आकर अपने बच्चों को इस तरह से ट्रैफिक वगैरह नहीं होने दे, एंड दे शुड बी अलर्ट, सतर्क रहना चाहिए। इवन बीट कांस्टेबल्स की जिम्मेदारी रहती है कि अगर उनको लगता है कि कोई नए लोग एरियाज में आ रहे हैं एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चों की ट्रैफिकिंग वगैरह हो सकती है, तो थोड़ा सा उसमें अलर्ट रहना चाहिए। अब हम आते हैं कि आपके बहुत सारे स्टैंडिंग ऑर्डर सर्कुलर्स हैं। यहाँ पे तो मैंने केवल लिस्ट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं बड़े सारे एसओपी सर्कुलर्स हैं। टाइम टू टाइम जब भी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शंस आती हैं तो उसके बाद कोई स्टैंडिंग ऑर्डर या सर्कुलर इशू हो जाता है या उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है टू कीप देम अप टू डेट। सो दीज आर स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड ऑल व्हिच यू शुड बी अवेयर ऑफ। सो आप देख सकते हैं कि कितने सारे सर्कुलर्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं मिसिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड। जब भी हम स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, अगेन जो चीज़ की हम पहले से बात कर रहे हैं, कि बच्चे एक हाई प्रायोरिटी है क्योंकि बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं, उनको हार्म से बचाने की हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। प्लस वी हैव टू इंश्योर कि फैमिलीज को मालूम रहे कि अगर कोई मिसिंग बच्चा है उनकी फैमिली से तो दे शुड बी केप्ट इन्फॉर्म। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फैमिलीज को आती है पुलिस से वो यही आती है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि केस में क्या हो रहा है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपके लिए डिफिकल्टी रहता है कि इतने सारे केसेस में किस किस को इन्फॉर्म करे, बट आजकल आई थिंक सभी थानों में एक वो हेल्प डेस्क बनाया गया है, तो वहीं पर अगर रेगुलर बेसिस पे उस हेल्प डेस्क के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे फैमिलीज को आप अपडेट करते रहे तो फैमिलीज को एटलीस्ट ये लगता है कि उनके केस में कुछ हो रहा है। सभी जानते हैं कि लाइक बच्चे से कितना अटैचमेंट होता है और फैमिली बर्बाद हो जाती है कई केसेस में अगर बच्चे इस तरह से चले जाते हैं। एंड इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर हमारे एरिया में एक बार ऐसा इशू हुआ है तो बाद में ऐसा ना हो, उस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मनु, कैन आई टेक अनदर 5-10 मिनट्स? मनु? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can, ma'am. Oh, Ma'am, we have time. I'll just take another 5 to 7 minutes. Right, ma'am. ओके ओके, ठीक है। सो अगर हम वो पुलिस का रोल में अभी बाद में हम उस पर भी जाएंगे सर्कुलर पे, बट मोटे तौर पे अगर हम बात करें, ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें। अगेन गोइंग बैक टू सदर्न हल्दर्स केस, डिस्पाइट रिपीटेड डायरेक्शंस उस केस में पाया गया था कि बच्चे की मिसिंग की एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई थी। सो दैट इज समथिंग जो बहुत ब्लेटेंटली कोर्ट के सामने आ जाएगा
अगर हम इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे, FIR नहीं रजिस्टर करेंगे, तो दैट इज समथिंग विच बिकम्स वेरी ऑब्वियस। तो उस चीज़ को अवॉइड करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। देन ऑब्वियसली हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, FIR रजिस्टर किया, एंड इमीडिएटली वी शुड टेक स्टेप्स। अभी मैडम बोल रही थी कि प्रॉब्ली कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया, तो हम इमीडिएट स्टेप्स नहीं ले पाए, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। वी अगेन आई वुड रिपीट, वी नो कि आप लोग के पास बहुत जिम्मेदारी होती है, यूर ओवरबर्डन, येट एट द सेम टाइम जो इनिशियल टाइम होता है वो बहुत क्रिटिकल रहता है। अगर उसको हम ध्यान में रखते हुए इमीडिएट स्टेप्स ले, तो बच्चों की रिकवरी रेट ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसमें NGOs को इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अभी जैसे ये अभी तो शायद लॉकडाउन पता नहीं खुले या क्या, जो भी सिचुएशन रहे, बट आई हैव सीन बहुत से एरियाज में पुलिस हूटर्स वगैरह के थ्रू अनाउंस भी करती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि आप लोग अपने घर में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो उसके दौरान अगर आप लोग एक छोटा सा एफर्ट करके, जैसे चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098, हम लोग सभी जानते हैं, उसके बारे में भी कभी कभी अनाउंसमेंट कर दें, तो आप कह सकते हैं कि किसी का बच्चा मिसिंग है या किसी को मिसिंग बच्चा मिलता है, तो उसकी कॉल एटलीस्ट 1098 पे की जा सकती है, या पुलिस को इन्फॉर्म करे, तो उससे बहुत बच्चों के लिए फ़ायदा हो सकता है। अगर अगेन हम कमिंग बैक टू द इशू, अगर हम आपके सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स या सर्कुलर्स को देखें, तो एक बहुत डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्रिएट किया गया है। इट इज़ नॉट जस्ट कि सिर्फ पुलिस स्टेशन लेवल पर इस इशू को डील किया जाता है, बट एक पूरा एक हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है मिसिंग चिल्ड्रन को डील करने के लिए। सो व्हेन वी हैव सो मेनी स्टेप्स, वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, देयर इज नो रीजन कि हमारी तरफ से कहीं पे कोई चूक हो। ठीक है, तो हम जानते हैं स्टेट लेवल मिसिंग पर्सन स्क्वाड क्रिएट किया गया है, जो क्राइम ब्रांच के अंडर काम करता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ DCP क्राइम एंड ACP एंटी किडनैपिंग सेक्शन ऑफ द क्राइम ब्रांच। ठीक है, इनका बेसिक वही फंक्शन देखें तो मॉनिटर दी अपलोडिंग ऑफ डेटा। अभी हम आएंगे कि हर थाने के लेवल पे डेटा अपलोड होना चाहिए, DMQ के लेवल पे अपलोड होना चाहिए, तो उसको मॉनिटर करना कि डेटा अपलोड हो रहा है, प्लस उसमें DMQ से क्लोज लिंक्स मेंटेन करना, और एजेंसीज के साथ ज़रूरत हो तो डेटा को शेयर करना, इम्पोर्टेंटली डेटा को एनालाइज करना। अगर डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, तो कभी कभी पैटर्न निकल के आता है, एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, या जब बच्चे रिकवर होते हैं तो पता चलता है कि एक एरिया से बच्चों को ज़्यादातर को सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए लेके जाया जा रहा है, एक दूसरे एरिया में बच्चों को चाइल्ड लेबर में डाला जा रहा है, तो एक पैटर्न सा निकल के आ सकता है, जिससे कभी ना कभी जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको ढूंढना आसान हो जाता है। जनरली अब देखिए, अब बच्चे रिकवर तो हो जाते हैं, बट जो किंग पिन्स होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ट्रैफिकिंग इज एन ऑर्गेनाइज क्राइम, तो किंग पिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहता है। ज़्यादातर हमको लोअर लेवल के ही जो उनके ऑपरेटिव्स होते हैं वही मिल पाते हैं, इसीलिए पूरी चीज़ों को एनालाइज करना ज़रूरी रहता है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर, एक मिसिंग पर्संस हेल्पलाइन है, तो जैसे मैंने कहा पुलिस का अपना 100 नंबर है, 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है, आपकी हेल्पलाइन नंबर है 232414110। सॉरी टू से, बट आई एम श्योर काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स को भी ये नंबर नहीं याद होगा, तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग जितना हो सके अपने एरियाज में इस नंबर को, हेल्पलाइन नंबर को एडवर्टाइज करने की कोशिश करें। सभी के एरियाज में मार्केट प्लेसेस आते हैं या कुछ और ऐसे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग छोटे छोटे बोर्ड्स लगवा सकते हैं, ताकि अगर किसी को भी पता चले कि कोई बच्चा मिसिंग है, तो वो इस पर कॉन्टैक्ट कर सके। आई मे जस्ट से कि मैं लास्ट ईयर उड़ीसा गई थी, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि हम हाईवे पे जा रहे थे, हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे साइड में जैसे वो बॉल सी बनी हुई थी या कुछ भी, उस पे चाइल्ड लाइन का नंबर लिखा हुआ था। तो दोज कैन बी फैक्टर्स जिसको हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके हम कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, कि बच्चा कोई डिस्ट्रेस में खुद है या किसी को मिसिंग चाइल्ड मिलता है तो कांटेक्ट करना मुश्किल ना हो। तो जो आपकी मिसिंग पर्संस हेल्पलाइन है, इसको थोड़ा सा आप एडवर्टाइज या पब्लिसाइज करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली हेल्पलाइन पे कॉल आती है, तो यू हैव टू ट्राई एंड गेट द फुल डिटेल्स। आपके पास कॉल आती है, अगेन आपको बहुत सारे DMPO, SJPO, ASTU वगैरह को इन्फॉर्म करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है सारे कॉल्स का, पुलिस स्टेशन से फीडबैक लेना है कि क्या हो रहा है उसमें, और कंप्लेनेंट को भी इन्फॉर्म रखना है। पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी बन जाती है कि इमीडिएटली एक इमरजेंसी ऑफिसर को डिप्यूट करे, जो कंप्लेनेंट को कॉन्टैक्ट करे, डेली डायरी में इसका रजिस्टर रिकॉर्ड करे, और मिसिंग चाइल्ड का केस है तो उसमें FIR रजिस्टर हो, थॉरो इंक्वायरी वगैरह उसमें की जाए।
तो क्या कहते हैं, ये 2 हो गए। उसके नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो क्राइम ब्रांच में एंटी किडनैपिंग सेक्शन है एक, जो सेंट्रल लेवल पे फंक्शन करता है। एंड इसमें भी वही एनालाइज करना पैटर्न को, इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश करना, एंड ट्राइंग टू सी कि कोई ट्रैफिकिंग का एंगल तो इन्वॉल्व नहीं है। अगेन ये सेक्शन दूसरी सेंट्रल एजेंसी से भी लिएजन करता है। एंड जैसे अगर किसी और स्टेट से इंफॉर्मेशन आती है या और स्टेट्स में इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी पहुंचाई जाती है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएमपीयू है। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी डीएमपीयू होगा, बिकॉज दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट में डीएमपीयूज क्रिएट किए गए हैं। ये एसीपी ऑपरेशंस की ओवरऑल सुपरविजन में काम करता है। एंड यहाँ पर अगेन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको अपलोड करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपके एरिया में जो भी मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस आते हैं उनकी डिटेल्स अपलोड किए जा सके। अगेन पैटर्न को एनालाइज करना अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रिकॉर्ड्स को मैच करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप, क्योंकि आपके पास डेटा रहता है जो मिसिंग चाइल्ड है और कोई बच्चा कहीं पे रिकवर होता है उसे मैच करें, ताकि हम उनको कोरिलेट करके बच्चे को रिहैबिलिटेट करने में मदद मिल सके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है विच इज़ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर 4 महीने तक अगर बच्चा ट्रेसेबल नहीं होता है, शायद इसको रिड्यूस करके 3 मंथ्स कर दिया, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, आई एम सॉरी, बट क्या कहते हैं उसमें उसको एच2 में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि दैट इज अ केस ऑफ ट्रैफिकिंग। बाद में कारण कुछ भी पता चले, इलोपमेंट भी हो सकता है, बट एक प्रिजम्पशन हम लेकर चलते हैं कि अगर 3 या 4 महीने तक बच्चा ट्रेसेबल नहीं है तो उसको ट्रैफिकिंग का केस माना जाएगा और एच2 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पुलिस स्टेशन लेवल पर, क्योंकि दैट इज समथिंग जो आप लोगों को डायरेक्टली कंसर्न करेगा। हर थाने में एक मिसिंग पर्सन डेस्क होना चाहिए, ठीक है, जिसमें इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन विल बी द रजिस्टरिंग ऑफिसर, एंड जितने भी आपके जेडब्ल्यूओज या जिनको अब हम सीडब्ल्यूपीओज कहते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। पूरा आपको सारा एक्शन लेना है, उसमें कंप्लीट रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं, और सेपरेट रजिस्टर मिसिंग पर्संस का मेंटेन करना है हर थाने में, जिसको एसएचओ एंड एसीपी रेगुलर बेसिस पे उसको मॉनिटर करेंगे और स्क्रूटिनाइज करेंगे। तो आई होप कि सभी थानों में मिसिंग पर्संस डेस्क है। अगेन आई नो कि एक समस्या आती है, आप लोग कहते हैं कि एक विमेन डेस्क बना दो, एक जनरल हेल्पलाइन का डेस्क बना दो, मिसिंग पर्सन डेस्क बना दो, तो कितने डेस्क क्रिएट किए जाएंगे? तो जनरली वो होता है कि एक डेस्क क्रिएट किया गया जिसपे ऐसे सारे स्पेशल केसेस को टेकअप किया जाता है, बट मेन थिंग इज कि दैट फैसिलिटी, बिकॉज द एसओपी प्रोवाइड्स फॉर इट, दैट फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल। इम्पॉर्टेंटली कहते रजिस्टर्स भी मेंटेन होते हैं, हर मिसिंग पर्सन का एक सेपरेट फाइल मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, और इसको कंप्यूटराइज भी करना चाहिए और सारा डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपलोड करना चाहिए। आजकल वी नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, अभी भी हम डिजिटली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो उसको कंप्यूटराइज करना भी जरूरी है। फिर थोड़ा जेडब्ल्यूओज या सीडब्ल्यूपीओज की बात करें तो जैसे मैंने कहा दिल्ली में वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे हर थाने में डेजिग्नेटेड सीडब्ल्यूपीओज हैं, हर थाने में दो सीडब्ल्यूपीओज हैं, बट प्रॉब्लम यही रहती है कि आप लोगों के पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, येट एट द सेम टाइम आपको डेजिग्नेट बच्चों के केसेस के लिए किया गया है, तो यू विल हैव टू टेक टाइम आउट एंड डेडिकेट योरसेल्फ टू दिस वर्क। तो आप लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि फैमिली मेम्बर्स और गार्डियंस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि इंफॉर्मेशन आपको मिल सके एंड उनको भी आप इन्फॉर्म्ड रखें कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को टच में रहना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपके पास तो केस खुला है बट बच्चा वापस घर आ गया है, पेरेंट्स आपको इन्फॉर्म नहीं करते और वो फैमिली कहीं और शिफ्ट भी हो जाती है, तो आप ही फाइल में वो केस खुला रह जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप टच में रहेंगे रेगुलर बेसिस में, तो अगर बच्चे ट्रेस हो जाते हैं तो आप उन केसेस को जो आगे प्रोसीडिंग्स है करके क्लोज भी कर सकते हैं। आपके पास एक रिकॉर्ड रहना चाहिए कि आपकी है, स्पेशली चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, चिल्ड्रंस होम्स एंड ऑल, ताकि कभी किसी बच्चा कोई बच्चा मिलता है उसको लेके जाना हो तो आपको दिक्कत ना हो। सीडब्ल्यूसी हमेशा पोस्टल लिंक आपका। Now this the steps to be taken by IO, this is strictly as per आपका जो सर्कुलर 252 है रिवाइज्ड वाला, उसके हिसाब से है। तो अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड सर्कुलर, आप उसको चेकलिस्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उसके हिसाब से जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसी में लिखा गया है कि फर्स्ट 15 डेज आर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, जैसे मैडम भी कह रही थी, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखें। जितना हम इन केसेस में
कहते हैं स्विफ्टली एकदम जल्दी से काम करेंगे, उतना ही रिकवरी आसान हो सकती है। अगर हम पहले 2-3 दिन में कुछ एक्शन लें, ट्रेस करना आसान हो सकता है, फिर हो सकता है कि 1-2 दिन बाद बच्चे को दिल्ली से बाहर ले जाया गया हो, जिसके बाद ट्रेस करना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए इमीडिएट एक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने कहा कि मिसिंग चिल्ड्रन के लिए मैंडेटरी है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करना है। इट इज़ ऑल्सो नाउ नेसेसरी कि डीएसएलएसए को आप एफआईआर की कॉपी फॉरवर्ड करेंगे along with the addresses and phone of the parent। पहले एक और ईमेल आईडी थी, अब एक संपर्क.dslsa@gov.in भी है, जो बेसिकली पॉक्सो के केसेस वगैरह के लिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस के लिए क्रिएट की गई थी, बट इस ईमेल आईडी पे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन यू ऑल नो कि इन्फॉर्मेशन फॉर्म इसमें फिलअप करना है, पीसीआर, एससीआरबी, एनसीआरबी वगैरह सबको इन्फॉर्म करना है, मैसेज फ्लैश करना है, information to be shared with CBI, DD entry to be sent to DMPU and MPS जो आपका PS पोर्टल में है, Hue and cry notices। जनरली हम लोग देखते हैं कि इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है, बट मेन थिंग इज टू स्टार्ट इंक्वायरीज इमीडिएटली। सबसे पहले पॉसिबल सस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मिसिंग पर्सन के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करना। आजकल हम लोग जानते हैं कि इवन बच्चों के पास मोबाइल फोन्स होते हैं, दैट कैन बी द बेस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जो मिसिंग बच्चा है उसकी क्या कहते हैं वाइड पब्लिसिटी करना। हाउएवर यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि लड़की है, वुमन है, या इवन बच्चे के लिए मैं कहूँगी तो पेरेंट्स या गार्डियन की कंसेंट ले लेनी चाहिए बिफोर आप फोटो को पब्लिश करें। नहीं तो जैसे जेजे एक्ट में ही बात की जाती है, पॉक्सो में बात की जाती है, विक्टिम्स की आइडेंटिटी को हमारे को रिवील नहीं करना है, इसीलिए कंसेंट लेना अगर ज्यादा जरूरी हो तो सीडब्ल्यूसी से कंसेंट भी आप ले सकते हैं, सो दैट बच्चे के हित में आप उसको फोटो को ब्रॉडकास्ट या पब्लिश करने से पहले। फिर आई वुड ऑल्सो से कि जनरली इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट आजकल हर एरिया में लोकल केबल ऑपरेटर्स भी होते हैं। अगर आप लोकल केबल ऑपरेटर्स की हेल्प ले, उस पर फ्लैश करें, तो उससे भी आपको मदद मिल सकती है। बॉर्डर चेक पोस्ट को अलर्ट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चेक करना, ठीक है। हेलर्स, लाउड हेलर्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करना, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बच्चे की मिसिंग कहते बच्चे का कंप्यूटर है, डायरी है, उसको एग्जामिन करने की कोशिश करना। बहुत से बच्चे होते हैं घूमने फिरने निकल जाते हैं, तो मॉल्स वगैरह को चेक करना, ठीक है। तो दीज आर कहते हैं बेसिकली सजेस्टिव। आप लोग अपने आप से और एरियाज भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको लग सकता है कि बच्चा जा सकता है। सीसीटीवीज वगैरह का कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो सीसीटीवीज को स्कैन करना। एंड अगेन आई वुड रिइटरेट कि फैमिली मेंबर से टच में रहना, एफआईआर रजिस्टर करनी है। नेबरिंग पुलिस स्टेशन से भी आपको इंक्वायरी करते रहना चाहिए, कभी कभी हो सकता है कोई डेड बॉडी वहां पे रिकवर हुई हो तो उसको मैच करने की कोशिश करना। हॉस्पिटल से, चिल्ड्रंस होम से, शेल्टर होम से, उन सब से टच में रहना कि कोई ऐसा बच्चा वहां पर नहीं आया हो। आप लोग जानते हैं कि रिवॉर्ड भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर क्या कहते हैं बच्चा नहीं मिल रहा है उसमें आप रिवॉर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं कि कोई बच्चे के बारे में क्लू देता है। एंड कहते हैं डीएलएसए के साथ फुली कोऑपरेट करना है इस चीज़ में। अगर बच्चा कोई ट्रेस हो जाता है, अगेन सेम प्रोसीजर, पीसीआर, डीएमपीयू, एमपीएस वगैरह को इन्फॉर्म करना ताकि केस क्लोज हो सके। फिर जैसे पहले भी कहा, एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, डीएलएसए को फॉरवर्ड होनी चाहिए, एंड हर पीएस में जेडब्ल्यू सीडब्ल्यू इनका कंप्लायंस इंश्योर करेंगे। फाइल अगर बच्चा मिल जाता है, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर मिसिंग बच्चे की आप एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो उसको डीएलएसए फॉरवर्ड करना है, बट अगर बच्चा मिल जाता है उसको भी कंसर्न डीएलएसए में पेश करना ताकि बच्चे के साथ एक इंटरेक्शन हो सके, तो जस्ट टू फाइंड आउट कि बच्चा किस कारण से गायब हुआ था। अगर जरूरी हो सके काउंसलिंग बच्चे को दी जा सके। दिल्ली में 9 फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स हैं रन बाय दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड, जहाँ पर बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है। सिमिलरली आपके एसयूपी में अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिलती हैं, उनके लिए भी डिटेल स्टेप्स दिए गए हैं, तो वो भी कभी कभी मैचिंग वगैरह करनी पड़ सकती है। जैसे पहले भी बात की, बच्चा नहीं मिलता है तो आप एएचटीयू को फिर इन्फॉर्मेशन देंगे। बच्चा रिकवर हो जाता है तो देन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कैरी आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि कोई ट्रैफिकिंग का एंगल तो नहीं है। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखें, अगर आप बच्चे से बात करेंगे, कभी कभी हो सकता है कि बच्चा आपको बता सकता है कि जहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया है वहाँ पर बहुत सारे और भी ऐसे हैं जिनको उन्हीं हालात में रखा गया है। देन इट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप इमीडिएटली एक्शन ले और बाकी बच्चों को भी रेस्क्यू करने की कोशिश करें।
फिर आपको क्या कहते हैं, बच्चा जब वापस आता है तब भी उसकी ऑब्वियसली डेली डायरी में रिकॉर्ड करनी है, सभी को इन्फॉर्म करना है। बच्चे को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, तो वो सब उसको प्रोवाइड करना। ठीक है। इसमें एसएचओज और एसीपीज का बहुत इंपॉर्टेंट सुपरवाइजरी रोल होता है, बिकॉज अल्टीमेटली से ये याद रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएचओ या एसीपी की ही है। कोई अल्टीमेटली आईओज वगैरह कोर्ट्स में जाते हैं, क्वेश्चन एसएचओ को ही किया जाएगा, तो एक सुपरवाइजरी रोल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको ध्यान रखे कि रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन किया गया है, डेटा अपलोड हो रहा है, सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए गए हैं, एंड इवन नोटिस बोर्ड्स डिस्प्लेड है रिपोर्टिंग रूम में विद डिटेल्स ऑफ मिसिंग पर्संस। ठीक है। अगर कोई आपको लगता है कि केस नेबरिंग एरिया से, नेबरिंग स्टेट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वहां पर इंश्योर करना कि वो डिटेल्स नेबरिंग स्टेट में पहुंचाए जा सके। अगर कोई क्लू मिलता है तो आईओ को इमीडिएटली भेजना ताकि वो टाई अप कर सके कंसर्न पीएस से। अगर ऑर्गेनाइज गैंग इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली एंटी किडनैपिंग सेक्शन से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि वो बाकी स्टेट से कोऑर्डिनेट कर सके। तो बच्चा मिसिंग है, रिकवर्ड है, या और स्टेट्स में इंफॉर्मेशन हो सकती है, उन सभी केसेस में एसीपीज एसएचओज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली सुपरवाइजरी कैपेसिटी। इसी तरह से कोई बच्चे की आपको बच्चा रिकवर होता है या आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी दूसरी स्टेट से बच्चा मिसिंग है जो दिल्ली में हो सकता है, तब भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इमीडिएटली एक्शन ले, बच्चे को ट्रेस करने की कोशिश करें, और अगर मिल जाता है तो जो आपके एसओपीज हैं उनको सारा आप लोग फॉलो करें। लास्ट एक दो चीजें बस बताना चाहूंगी कि हम लोग सभी जानते हैं ये प्रोग्राम भी दिल्ली लीगल सर्विसेज के माध्यम से, साउथ वेस्ट डीएलएसए के माध्यम से हो रहा है। तो इस चीज को हमेशा याद रखें कि हर बच्चा या हर वुमन का अधिकार है कि उनको मुफ्त कानूनी सहायता या लीगल एड मिल सकती है। नॉट ओनली वुमन एंड चाइल्ड बट इवन स्पेसिफिकली वुमन विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग या बेगार, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको रेफर किया गया है, उनकी भी एंटाइटलमेंट है कि उनको लीगल एड मिल सके। स्पेशली फिर उसके बाद अगर कोई विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर भी है, एंड आई वुड से कि अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अप्लाई कर ही रहे हैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, तो इसको भी एक डिजास्टर ही माना जाएगा जो आजकल हमारी कंट्री में सिचुएशन हो रही है। तो विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर्स हैं, उन लोग को भी इंटाइटलमेंट है लीगल एड के बारे में। बच्चा किसी होम में है, प्रोटेक्टिव कस्टडी में है, तब भी उसको लीगल एड का इंटाइटलमेंट है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास आ सकते हैं, आपको लगता है कि विक्टिम को लीगल की रिक्वायरमेंट है, तो आप डीएलएसए को कांटेक्ट कर सकते हैं या डीएलएसए के बारे में उसको बता सकते हैं ताकि उनको लीगल एड मिल सके। यहाँ पे मैं लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस करना भूल गई, बट एनीवे आप लोग जानते हैं कि विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है। केसेस ऑफ ट्रैफिकिंग कुछ ऐसे हो सकते हैं या जैसे जहाँ पर बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वगैरह होता है, जिसमें उनका विक्टिम कॉम्पनसेशन का इंटाइटलमेंट हो जाता है। इसमें अगेन एसएचओज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, क्योंकि रादर देन हम ये वेट करें कि एप्लीकेशन कोर्ट में लगे, अगर आप ही अपने लेवल पर एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे डीएलएसए को, तो वो तुरंत उस केस को टेकअप करके कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की जा सकती है। अगर बच्चा होम में रह रहा है तब भी उसको कॉम्पनसेशन मिलने का अधिकार है, अगर वो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में कवर होता है। यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि हमारी लेटेस्ट दिल्ली विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, जिसमें एक एडिशनल चैप्टर भी जोड़ा गया है, एंड उसके तहत बच्चों को कॉम्पनसेशन मिलने का अधिकार है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम अब पूरी कंट्री में है, हर डिस्ट्रिक्ट की एक अलग से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, आप लोग जानते होंगे, आपके डीसीपी भी उसका पार्ट होते हैं। तो कुछ केसेस में बच्चे रिकवर होते हैं, बट आपको लगता है कि बच्चों को कोई जान वगैरह का खतरा हो सकता है, देन यू कैन इन्फॉर्म द फैमिलीज या डीएलएसए को बता सकते हैं, सो दैट एन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट की जो है, और उनको विटनेस प्रोटेक्शन मिल सकती है। पॉक्सो के केसेस में सपोर्ट पर्सन अपॉइंट हो सकते हैं, एंड दिल्ली में भी हम जानते हैं कि वल्नरेबल विटनेस रूम्स वगैरह है। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है ताकि विक्टिम्स को हम प्रॉपरली उनकी कहते हैं मदद उनको कर सके। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग जितना हो सके एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करें इसमें, सो दैट एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करें, तो जितना हो सके हम बच्चों की मदद कर सके, एंड अपने लेवल पर आपको यही कोशिश करनी है कि आपकी तरफ से चूक नहीं हो, क्योंकि क्या होता है आप इतनी मेहनत करें, एक छोटी सी कमी रह जाएगी, इस कारण कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी, जबकि ऑब्वियसली डेलिबरेटली आप नहीं करते या कोई इंटेंशन नहीं हुई। सो दैट इज व्हाई वी कीप रीइटरेटिंग, अपना जो 252 है आपका सर्कुलर, उसको एज अ चेकलिस्ट यूज करें एंड उसके हिसाब से स्टेप्स ले,
तो बहुत सारी आपकी परेशानियां कम हो सकती है। सो एनी क्वेश्चंस और व्हाटएवर, किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके कोई कुछ कहना चाहे तो यू कैन डू दैट। मैम क्या अभी डीएलएसए में काउंसलिंग हो रही है? सी हाँ जी। डीएलएसए में, हाँ मनु बताओ आप। डीएलएसए में अभी भी काउंसलिंग ओपन है। हमारी हेल्पलाइन नंबर्स है, जैसे जो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है 1516 और साउथ वेस्ट की अलग से हेल्पलाइन नंबर है, तो आप विक्टिम को भेज सकते हैं ऑफिस में। हमने ऑन कॉल बेसिस पे काउंसलर्स लगा रखे हैं जो कि काउंसलिंग दे रहे हैं। अभी काउंसलिंग भी हो रही है और जिन केसेस में जरूरत है पिटीशन फाइल करने की, उनमें पिटीशंस भी फाइल हो रही हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के जो अर्जेंट केसेस हैं, तो उनमें पिटीशंस भी ड्राफ्ट करके फाइल करवाई जा रही है। ओके, इसमें एडिशनली मैं कहूंगी, जैसे पहले मैंने कहा था कि जो मिसिंग चिल्ड्रन वगैरह रिकवर होते हैं, फाउंड चिल्ड्रन है, उनको भी डीएलएसएस के सामने लाइक कहीं ना कभी वो नहीं हो रहा है सब जगह प्रॉपर्ली प्रोबेबली, तो उनको भी बच्चों को डीएलएसए के सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। जैसे आप बच्चे का 164 रिकॉर्ड करने लेके जाते हैं, तो उसी टाइम उसको डीएलएसए के सामने भी पेश कर दे, ताकि अगर डीएलएसए को लगता है कि बच्चे को काउंसलिंग दिलवाने की जरूरत है, देन द डीएलएसए कैन रेफर द चाइल्ड फॉर काउंसलिंग, या बच्चे को किसी और प्रकार की मदद होती है, विक्टिम कॉम्पनसेशन की उसकी एप्लीकेशन लगवानी है, तो डीएलएसए के लेवल पर वो कराया जा सकता है। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई कुछ कहना चाहे? मैम मैंने 164 के बयान करवाए थे, तो उसके बाद डीएलएसए में काउंसलिंग नहीं हुई। वो कह रहे थे कि अभी हो नहीं रही वहाँ पे काउंसलिंग, तो उसके अब आगे क्या प्रोसेस होगा? नहीं, प्रोबेबली या तो जो स्टाफ होगा उसको मालूम नहीं होगा। ये हो सकता है कि हाँ, उसमें काउंसलर अभी 24 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं है। आप उसमें अगर नोट करवा दें या पहले बता दें, तो हम ऑन कॉल बेसिस पे उनको काउंसलर को फोन करके दफ्तर में बुला के और काउंसलिंग करवा देंगे। अगर जैसे आप जब थाने से चलते हो, तो आपके पास डीएलएसए के ऑफिशियल्स के नंबर भी होते हैं और स्टाफ के नंबर भी होते हैं। तो आप अगर किसी को भी इन्फॉर्म कर दें कि हम ऐसे 164 का विक्टिम लेके आएंगे और उसकी काउंसलिंग की जरूरत है, तो हो जाएगा। अभी क्योंकि ये कोरोना के चक्कर में 24 घंटे की काउंसलिंग, मतलब अभी ऑफिस क्योंकि प्रॉपर से नहीं खुला है। ठीक है, तो जैसे मन्नू कह रही है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। अभी तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, तो एडवांस में इन्फॉर्म कर दे एंड इट विल बी टेकन अप, डोंट वरी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप ही हो जाता है, बाकी तो सब कुछ, सारी एक्टिविटीज डीएलएसए की एज इट इज चल रही है। इनफैक्ट डीएलएसए इज डूइंग मोर वर्क ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसलिए कि मतलब बहुत ज्यादा काम हो रहा है डीएलएसए के लेवल पर, तो इसलिए प्लीज डोंट हेजिटेट एंड गेट इन टच विद द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। और कुछ किसी को? इवन मैम, आई जस्ट ऐड ऑन, ये जैसे हम ये मीटिंग कर रहे हैं, तो हम ये वीडियो काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। मतलब अगर ओके, फिजिकल काउंसलिंग, अगर विक्टिम को लगता है कि बिल्कुल ही इमीडिएट काउंसलिंग की जरूरत है, तो वी कैन डू इट थ्रू दिस ऑडियो वीडियो मीन्स, उससे भी काउंसलिंग हो जाती है। ठीक है, तो फिर आपको लाने की भी जरूरत नहीं है। ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू, जैसे आप सिस्को आप लोग यूज कर ही रहे हैं, इसके थ्रू कनेक्ट करके भी आपकी बच्चे की वीडियो काउंसलिंग कराई जा सकती है, विक्टिम की जो भी है। इसको भी और है, और अगर सिंगल है तो वो सिंपल व्हाट्सएप काउंसलिंग भी हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन, या कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कुछ कहना चाहे? शर्माइए नहीं, आई मीन डोंट फील हेजिटेंट, आपको सिर्फ अनम्यूट करना है अपने आप को, एंड क्या कहते हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं, आई कांट से कि हम लोग सभी डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन मेक एन एफर्ट। किसी को कुछ भी कहना है, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है, प्लीज डू इट। कोई कुछ नहीं कहना चाहता? हाँ, there are no questions in the chat box also. ओके, रिगार्डिंग दी हेल्पलाइन नंबर पे कोई क्वेश्चन हो, या डीएमपीयूज जो है उन पे कोई क्वेरी हो, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसका कोई एसओपी, या फिर हम ये समझते हैं कि एवरीथिंग इज बीइंग फॉलोड। चलिए। गुड हाँ जी। आफ्टरनून मैम। हाँ जी बोलिए। मैम एक छोटी सी क्वेरी थी कि हाँ जी। चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करने के लिए मैम रेडिंग टीम में क्या एसडीएम और लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का होना कंपलसरी है क्या? केवल पुलिस डिपार्टमेंट से या पुलिस ऑफिसर्स उसको रेस्क्यू कर सकते हैं क्या? इस बारे में थोड़ा सा बताएं मैम। सी नॉर्मल कोर्स में, जैसे आप किसी एरिया में हैं, आपको इमीडिएटली पता चलता है कि कोई बच्चा डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में है, तो ऑब्वियसली यू कांट इग्नोर इट, ठीक है।
बट अदरवाइज अगर आप ये देखें तो जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसके अंडर जो वेरियस रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से इस पे टास्क फोर्स क्रिएट किया गया है जो डीएम के अंडर होता है। तो उस टास्क फोर्स को अगर उसमें देखें तो उसमें एक डीएलएसए का लॉयर भी होता है, एसडीएम भी होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से भी ऑफिशियल्स होते हैं, तो उन सबको उसमें डाला गया है। तो जनरली बेटर ये रहता है कि अगर आपके पास कोई इमीडिएटली केस भी आता है तो आप कम से कम उसको जो आपके डिस्ट्रिक्ट का टास्क फोर्स है उसको जो भी हेड कर रहा है उनको इन्फॉर्म कर दें कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। अगर तो वो लोग आ सकते हैं वेल एंड गुड, बट ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज वो लोग अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप आगे स्टेप्स नहीं लेंगे, बच्चे को रेस्क्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने लेवल पर तो आपको करना ही है, बट अगर आपको रेड डालनी है कहीं पर जाकर देन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं बाकी टास्क फोर्स के हिसाब से उनको भी ज्वाइन करें उसमें। ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई क्वेरी? I guess all the doubts are clear. तो मैं यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने दे टुक आउट देयर टाइम्स। सभी कई तो मैं देख पा रही हूँ कि मास्क पहन के आई गेस फील्ड में ही हैं और प्रोबेबली फोन से कनेक्टेड हैं हमारे साथ। मैं इंस्पेक्टर कुसुमलता जी का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतने कम समय में अपने सारे एफर्ट्स किए और लिस्ट ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया ताकि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो सके। और मैं डीसीपी एंटोएल फोन्स जी का भी धन्यवाद करूँगी। ये डीएलएसए हमारा साउथ वेस्ट का एक एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम जब भी उनको अप्रोच करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तो इस बारे में भी जब मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में भी हमने बात करी उनसे तो देन ही सेड कि 25 और 26 ईद की वजह से बिज़ी होगा, सो ही गिव अस अ नोट फॉर 27। तो डीसीपी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। और मैम गीतांजलि गोयल जी का, जो कि व्हिच इज़ शी इज़ आल्सो अ सीनियर एंड मैम के पास आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लेके जाएँगे, नॉट फ्रॉम द जुडिशियल साइड। अगर आप एज़ एन आईओ भी मैम से कोई डाउट है आप क्लियर करना चाहें तो मैम कैन मैम इज़ वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड एंड शी इज़ द वन पर्सन वी फॉल बैक टू। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम मैम से पूछते हैं कि कैसे होगा, एंड शी इज़ सो थॉरो, शी इज़ वेरी डीप। मैम जो भी देयर आर वेरियस टॉपिक्स ऑन व्हिच शी इज़ एन एक्सपर्ट और मैम बिल्कुल उन पे डीप स्टडी करके और मैम की कोशिश रहती है कि वो जिस भी तरह से हमारी मदद कर सकें वो करें। तो आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक मैम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Stay safe, stay healthy.